Hello everyone, welcome to my channel. Myself Sandeep Kumar Sinha. This video is in continuation of my previous video on income method of measurement of national income. We all know that first hand calculation in income method of measurement of national income is domestic income, that is net domestic product at factor cost, abbreviated as NDP at FC, which is the sum total of three components. Number one is the compensation of employees, number two is operating surplus, and number three is mixed income of self-employed. In my previous video, I already discussed the first component, that is compensation of employees, whose link is given in the description given below. Now the second component of domestic income is operating surplus, which I will discuss in this very video. Now let's start. Suppose a person has a factor of production which is in surplus over his or her consumption. जितना भी उसके पास कोई भी फैक्टर है उसके अपने इस्तेमाल से अधिक है. Now the what the person will do? The person will lend it to others for use in any productive activity. If those surplus factors of production are utilized in any productive unit, then it fetches a reward which is paid by a producer to that factor owner, and that reward paid to the surplus factors in the operation of production is termed as operating surplus. Therefore, तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम कि operating surplus may be defined as the factor incomes earned by a person for rendering productive services of its surplus factors in any production unit. Now look at the board. The second component of domestic income is operating surplus, which is divided into two components or two parts. One is the income from property. Property means संपत्ति. जैसे जमीन, लैंड हमारी संपत्ति है. कोई भी पैसा, मनी, दैट इज कैपिटल, वो हमारी संपत्ति है. वो अगर सरप्लस हम किसी को देते हैं यूज करने के लिए, तो बदले में जो रिवार्ड मिलता है वो हमारा फैक्टर इनकम है. ये कहां से आया? हमारी संपत्ति से. एंड दैट्स इट इज टर्म्ड एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. दैट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस. एंड नेक्स्ट वन इज द इनकम फ्रॉम द एंटरप्राइजरशिप, दैट इज एंटरप्राइजिंग फैक्टर हुज रिवार्ड इज प्रॉफिट. तो ये जो हमारा है प्रॉपर्टी से जो हमारा इनकम आता है, जो फर्स्ट कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस का, इसका तीन डिविजन्स है. वन इज द रेंट, नंबर टू इज रॉयल्टी, एंड नंबर थ्री इज इंटरेस्ट. रेंट एंड रॉयल्टी में भी टर्म एट इंटरेस्ट, ये था पार्ट जो भी हमारा अलग है. और रेंट और रॉयल्टी दोनों एक, मतलब रॉयल्टी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेंट, दैट इज अ रिवार्ड फॉर द यूज ऑफ सब सॉइल एसेट. जमीन के नीचे का हिस्सा अगर कोई भी यूज करता है किसी भी एक्टिविटी में, एंड वट एवर रिवार्ड इज पेड टू दैट ऑनर, दैट इज कॉल्ड एज रॉयल्टी. एंड रेंट इज द दैट इज रिवार्ड पेड टू द लैंड दैट इज अबव द सरफेस. जो भी रिवार्ड हम पे करते हैं लैंड को, जमीन के ऊपर के सरफेस का अगर इस्तेमाल करते हैं उसको रेंट कहते हैं, और जमीन के नीचे का अगर हिस्सा इस्तेमाल करते हैं तो जो रेंट मिलता है उसको रॉयल्टी कहते हैं. रॉयल्टी एक टर्म और से जुड़ा हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज. जो भी हमारी अपनी संपत्ति है, हम अगर उसको किसी को यूज करने के लिए देते हैं तो जो बदले में उससे इनकम मिलता है वो रॉयल्टी कहलाता है. एंड थर्ड वन इज द इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट हमारा क्या है? रिवार्ड पेड टू द कैपिटल ओनर्स. Now the next part is profit, which is the income from entrepreneurship. जो भी इंटरप्राइजिंग फैक्टर है प्रोडक्शन यूनिट या प्रोडक्शन एक्टिविटी में, उसमें जो इंटरप्राइजिंग सेक्टर्स है, रिवार्ड पेड टू दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज profit, which is divided into three components. One is the profit tax, also called as corporate tax, which is the direct tax levied by the government on in the profit of a production unit. Second component of profit is dividend, which is paid to the shareholders, and third one is the undistributed profit, as its name is. उसका मतलब भी वही है कि जो भी हमें इन दोनों को बांटने, क्योंकि ये सरकार को गया, ये शेयर होल्डर्स को गया, जो बच गया विच इज रिटेन्ड बाय एनी प्रोडक्शन यूनिट फॉर डूइंग दैट प्रोडक्टिव एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर्स और सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर्स. ये सब कंपोनेंट्स हम वन बाय वन फिर पढ़ेंगे, क्योंकि हर में कुछ जोड़ना है,
कुछ छोड़ देना है और कुछ डिडक्ट करना है, घटाना है। मीन्स हमें ये याद रखना होगा सबसे पहले कंप्यूट करते वक्त में विच कंपोनेंट्स आर टू बी एडेड, दैट इज इंक्लूडेड, विच कंपोनेंट्स आर टू बी डिडक्टेड एंड विच कंपोनेंट्स आर टू बी एक्सक्लूडेड, नीदर एडेड नॉट डिडक्टेड। नाउ लुक हियर, we have to learn or we have to simply memorize that which factors are not to be included, that is deducted or excluded. Included means उसको add करना। तो first हमारा क्या था component income from property का rent. What is rent? I said earlier it is the reward paid to the surplus land used in the productive activity. तो जो भी rent, अगर सपोज आई एम द ऑनर ऑफ एनी प्रोडक्शन यूनिट, द लैंड इज ओन्ड बाय मी, आई एम द ऑनर ऑफ दैट लैंड सरफेस, जो भी टुकड़ा जिस पर जमीन का फैक्ट्री बना हुआ है, अगर वो हमारा जमीन पर बना हुआ है तो रेंट इज पेड टू मी, मीन्स इट इज पेड टू द ऑनर हिमसेल्फ, एंड दैट रेंट पेड टू द ऑनर हिमसेल्फ इज कॉल्ड एज, दैट इज इम्प्यूटेड रेंट। ये हमने लिखा है ना यहाँ पे, ये इम्प्यूटेड रेंट। इम्प्यूटेड रेंट मतलब क्या? लैंड दैट रेंट इज पेड टू द ऑनर हिमसेल्फ। ऑनर को जो अगर अपने आप को जो लैंड का रेंट पे करता है मालिक, वो कहलाता है इम्प्यूटेड रेंट। वो रेंट भी ऐड करेंगे। ये एक बस यहाँ पे एक प्रिकॉशंस होगा, रेंट पार्ट में अगर लिख दिया, अगर क्वेश्चन लिखा हुआ सिंपल रेंट मींस यू हैव टू ऐड इट, बट इफ इट इज रिटन इन द क्वेश्चन एज दैट इज इम्प्यूटेड रेंट, देन यू हैव ऑल्सो टू इंक्लूड इट, इसे छोड़ना नहीं है। ये हमारा एक प्रिकॉशन होगा। रॉयल्टी, रॉयल्टी इज द अनदर फैक्टर विच इज टू बी एडेड। रॉयल्टी क्या है? हमारा रिवार्ड फॉर द यूज ऑफ सब सॉइल एसेट्स, इट इज ऑल्सो दैट इज इंक्लूड। इसे भी हम ऐड करेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं। ऐसे द रॉयल्टी इज अ पार्ट ऑफ अ टाइप ऑफ रेंट। नेक्स्ट वन इज द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में प्रिकॉशंस ये बहुत जरूरी है कि इंटरेस्ट हमारा क्या है? दैट इज रिवार्ड पेड टू द सरप्लस कैपिटल यूज्ड इन एनी प्रोडक्शन यूनिट। तो जो भी हम इंटरेस्ट उस अमाउंट पर पे करते हैं जो अमाउंट कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज होता है, मतलब फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ आवर ओन रिक्वायरमेंट। सपोज हमने बैंक से लोन लिया, एक गाड़ी खरीद लिया लोन से। अब गाड़ी की सवारी हम और हमारे परिवार के लोग मिलके करते हैं, तो ये हम अपनी जरूरत पूरी करते हैं घूमने के लिए, एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए। ये पर्पस क्या है? कंजम्पशन। तो उस पर जो इंटरेस्ट पे होगा वो हम नहीं ऐड करेंगे। बट द सेम पार्ट, वही अगर कोई एक टैक्सी ऑपरेटर बैंक से लोन लेता है और गाड़ी खरीदता है और टैक्सी सर्विसेज में उसको यूज करता है, तो वो क्या करता है? इनकम जनरेट करता है। दैट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। मतलब जो भी अगर लोन अमाउंट इफ इट इज यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, then only the interest paid on that amount of loan is to be added, and if the loan amount is used for consumption purpose, then it is not to be added, not to be deducted, मतलब उसको छोड़ देना है हमारा यहाँ पे। इंटरेस्ट जो भी हमारा होगा for consumption, here I mentioned that the interest on the amount of loan used for consumption is excluded, मतलब इसको हम ना तो जोड़ेंगे और नहीं घटाएंगे। कंजम्पशन पर्पस के लिए अगर हम इंटरेस्ट पे करते हैं किसी भी अमाउंट ऑफ लोन पर, तो उस इंटरेस्ट को हम ऐड न करेंगे और न ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, छोड़ देंगे। इफ इट इज यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, देन ओनली द इंटरेस्ट वुड बी एडेड। नेक्स्ट कम्स दैट इज द प्रॉफिट पार्ट। प्रॉफिट मीन्स द रिवार्ड पेड फॉर द यूज ऑफ इंटरप्राइजिंग सेक्टर और द एंटरप्रेन्योरशिप। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट्स। वन इज द प्रॉफिट टैक्स, another one is the dividend, and next one is the undistributed profit. Profit tax is the direct tax levied by the government on the profit of any production unit. It may also be termed as income tax paid by any production unit to the government treasury. तो profit tax हमारा एक component है, dividend that is paid to the shareholders. But यहाँ पर एक हमारा precaution क्या है? If dividend is paid by one firm टू अनदर, एक फर्म अगर दूसरे फर्म को डिविडेंड पे करता है, तो इस डिविडेंड को हम न तो जोड़ेंगे और नहीं घटाएंगे, क्योंकि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। वंस डिविडेंड इज कैलकुलेटेड इन द प्रॉफिट ऑफ वन फर्म पेड टू द अनदर फर्म एंड दैट फर्म ऑल्सो इंक्लूड्स इन इट्स इनकम, देन दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इसलिए जो भी डिविडेंड एक फर्म दूसरे फर्म को पे करता है ऑन द शेयर्स that is held by that firm,
दैट इज टोटली एक्सक्लूडेड, नीदर एडेड नॉट डिडक्टेड। ये हमारा है डिविडेंड पार्ट। थर्ड कंपोनेंट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ दीज टू फैक्टर्स, दैट इज प्रॉफिट टैक्स एंड डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, वॉट एवर इज रिटेन्ड बाई द प्रोडक्शन यूनिट, दैट इज कॉल्ड एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये इसका अल्टरनेट हमारा दो नाम और भी है। एक हमारा क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स, मतलब जो भी देने के बाद बच गया किसी प्रोडक्शन यूनिट का, वो उसका अपना ये है प्रॉफिट का पार्ट, दैट इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और नंबर 2, द सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, मुख्य रूप से अगर कहेंगे लाभ या बचत, इसका यही शुद्ध लाभ है जिसे किसी को बांटना नहीं है। नाउ वन पॉइंट ऑल्सो हियर टू बी नोटेड दैट इफ इन द क्वेश्चन प्रॉफिट इज गिवन एंड एट द सेम टाइम एनी ऑफ दीज 3 कंपोनेंट्स ऑल्सो गिवन, मतलब ये तीनों भी दिया हुआ है या तीनों से कोई एक दिया हुआ है, एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज ऑल्सो गिवन, देन यू हैव ओनली टू इंक्लूड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड एक्सक्लूड दीज कंपोनेंट्स इफ गिवन इन द क्वेश्चन। दैट्स। अब हम सारे फैक्टर्स को एक साथ कंपाइल करते हैं। मींस ऑपरेटिंग सरप्लस जो है उसमें क्या क्या जोड़ते हैं। नंबर 1 दैट इज रेंट, number 2 that is royalty. If it is given in the question, then you have to add it. If it is not given the question, you don't have to panic over it. Number 3 that is interest, and number 4 is profit. 1 2 3 4, all these 4 components added together will give us the value of operating surplus. Now profit is equal to the sum total of profit tax, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर ये तीनों दिया हुआ है और प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, देन यू ऐड द 3 टुगेदर टू गेट द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, एंड दैट इज टू बी एडेड टू गेट द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। बट if profit is given in the question and any of the 3 components also given, then you have to simply exclude that component of profit and only include this amount of profit that is given in the question. To profit means total profit. इसके बाद जो हमारा थर्ड फैक्टर है कंपोनेंट, ये डोमेस्टिक इनकम का, दैट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। और उसके बाद हम कैसे नेशनल इनकम कंप्यूट करेंगे इनकम मेथड में, इसका डिस्कशन हम इसकी अगले वीडियो में करेंगे। मींस द थर्ड पार्ट, इन द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द थर्ड कंपोनेंट दैट इज ऑफ डोमेस्टिक इनकम, which is mixed income of self-employed, and how to compute national income in that method, that is income method of measurement of national income, that would be discussed later in the next video. उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। Please do like, share and subscribe, but don't forget to just make a comment in the comment box, and just you have not to forget to press the bell icon, so that you get the notification as soon as I simply post a video. मैं जैसे ही हम एक नया वीडियो पोस्ट करेंगे वो आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू।